Morning student, today we will read chapter number 8 in history. Chapter number 8 है The Rise of the First Empire. The foundation of the first empire in India was laid by the Mayuran dynasty in Magad. The first three rulers of the Mayuran dynasty were Chandragupta Maurya, Bindusar and Ashoka. The empire stretched across the subcontinent, including large part of Afghanistan. Who were the Mayuran emperor and how did they succeed in making such a large empire? We will learn about the origin and achievement of Mayuran dynasty in this chapter. जो इंडिया में पहला साम्राज्य था उसका उदय कब हुआ, वो था मयूर वंश मगध का। ये जो थे फर्स्ट थ्री रूलर जो थे मयूरन वंश के, वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। ये जो अंपायर था वो इंडिया में सब कॉन्टिनेंट से और इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का यहाँ तक फैला हुआ था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मयूरन एम्परर यानी सम्राट कौन कौन से थे और उन्होंने अपनी सफलता से इस साम्राज्य का विस्तार कैसे किया और उनके क्या क्या अचीवमेंट थे, वो हम अब आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Alexander invasion. In the middle of the 3rd century BCE, India was invaded by foreigners from the northwest. One such foreign invader was the famous Greek conqueror Alexander of Macedonia. He was the ruler of Macedonia who at the young age of 26 left his country with a huge army to conquer the world. After conquering Egypt, Syria, Palestine and Persia, he marched triumphantly through the Hindu Kush mountain and entered Punjab in India. 3rd सेंचुरी के बीच मध्य में इंडिया में बहुत से फॉरेनर आए जिन्होंने भारत में नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण किया। उनमें से एक विदेशी आक्रमणकारी ग्रीक का फेमस विजेता अलेक्जेंडर, जो कि मैकेडोनिया का राजा था और उसकी उम्र उस समय 26 ईयर थी। वो एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर वर्ल्ड पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला। उसने जो है इजिप्ट, सीरिया, पैलेस्टाइन एंड पर्सिया पर विजय प्राप्त की और उसके बाद वो हिंदू कुश माउंटेन से होता हुआ पंजाब से इंडिया में एंटर हुआ। The two rulers powerful in the Punjab were Ambi and of Takshila and Porus of Purva. Ambi welcomed Alexander and struck an alliance with him. On the other hand, Porus refused to accept Alexander's treaty and fought a fierce battle with him. Porus was defeated, but Alexander gave back the kingdom to Porus because he was very impressed with him. दो पावरफुल राजा जो पंजाब के थे उस समय, तक्षशिला के राजा आम्बी और पूर्वा के राजा पोरस, उनसे जो है अलेक्जेंडर की मुलाकात हुई। आम्बी ने जो है अलेक्जेंडर का वेलकम किया और उससे संधि कर ली, लेकिन इस पोरस जो था उन्होंने अलेक्जेंडर की जो संधि थी उसे रिफ्यूज कर दिया और उनके बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ जिसमें पोरस जो है वो अलेक्जेंडर से हार गए। लेकिन फिर भी जो अलेक्जेंडर है वो उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ उनकी वीरता से और उन्होंने उसको उसका जो राज्य था वो वापस कर दिया। Alexander then marched ahead, but when he reached the river Vyas, his soldiers refused to go to further. They were tired and Alexander was forced to return home, but he died a tragic death in Balban in 323 BCE at the age of 32. When he left India, he appointed governor to look after the territories he had conquered. He died without leaving an heir, and the governor soon annexed 3 territories. इसके बाद अलेक्जेंडर जो है वो व्यास नदी की ओर बढ़ा
अपने सोल्जर को लेकर, लेकिन उसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत थक गए थे और अलेक्जेंडर को फोर्स किया कि वो घर वापस चलें। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जो है बलवन में ही मृत्यु हो गई जब उसकी उम्र 32 थी। और उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया छोड़ दिया। उससे पहले वो जो है अपने प्रदेशों को देखने के लिए गवर्नर को नियुक्त कर गया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके शासन पर कोई शासक नहीं था उसके राज्य में, तो गवर्नरों ने, जो उसके द्वारा नियुक्त गवर्नर थे, उन्होंने उनके प्रदेशों को हड़प लिया। Alexander invention helped India in many ways. Many Greek stayed behind in India. The account of the Greek are valuable source of history. They tell us about life in India in those times. Also, new trade routes were opened between India and the West. Trade with other countries increased. There was an exchange of ideas with the West. One of the important effects the Alexander invention was the destruction of small kingdom, which paved the way for the founding of a new empire. अलेक्जेंडर के आक्रमण से इंडिया में बहुत सी राहें खुलने के लिए हेल्प मिली, क्योंकि इससे बहुत से ग्रीक जो थे वो इंडिया में ही रह गए और उन्होंने बहुत सी उनके बारे में लिखा। इंडिया के बारे में जो ग्रीक के हिस्ट्री है बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है हमारी हिस्ट्री में। ग्रीक जो लेखक थे उनके द्वारा लिखे हुए, और उन्होंने हमें बताया कि उस समय जो है उनकी लिखी किताबों में यह दर्शाया गया है कि उस समय हमारे देश की क्या स्थिति थी। इसके अलावा हमारे देश में उस समय जो है नए व्यापार के रास्ते भी खुल गए वेस्ट से। ट्रेड का जो है व्यापार और कंट्रियों में भी हमारे देश में बढ़ गया और एक्सचेंज हुए हमारे और उनके विचार, वेस्ट के आइडियाज़ आपस में। और बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था अलेक्जेंडर के आक्रमण का वो ये था, उसमें स्मॉल किंगडम जो थे वो नष्ट हो गए और एक नए एम्पायर के फाउंडिंग का जो है रास्ता वो पक्का हो गया। Chandragupta Maurya and the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya, he led the foundation of India's first empire in Magad. He was born in 340 BCE. Not much is known about his family. There are many different stories about this ancestry. Some sources traditionally believed that he belonged to the Maurya tribe who named Peacock. He was the Takshila when he met Chanakya, a wise and shrewd Brahmin who bought him. Chanakya had once been offered by Dhananand, the ruler of Magad at the time. He had sworn revenge and planned to overthrow him. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इंडिया के फर्स्ट एम्पायर की स्थापना करने वाले थे जो कि मगध का था। उनका जन्म जो है 340 BCE में हुआ था। उनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कई डिफरेंट स्टोरियों से ये पता चला है कि उनका जो वंश था वो एक मौर्य ट्राइब से था जिसका नाम पीकॉक के नाम पर रखा गया है। वो तक्षशिला में चाणक्य से मिले थे जो कि अब पाकिस्तान में है। चाणक्य एक बहुत ही चतुर ब्राह्मण थे, वो उसे अपने साथ ले आए। चाणक्य जो थे उन्हें एक बार धनानंद जो कि मगध का राजा था उनके द्वारा अपमानित किया गया था। तब उन्होंने ये शपथ ली थी कि वो उसको उसकी राजगद्दी से हटा देंगे। Dhananand was a powerful ruler with a large army. It was not easy to defeat him with Chanakya guidance. Chandragupta Maurya raised an army. He first took over Takshila and other small kingdom of the northwest. Finally, he launched an attack against Dhananand and become the first ruler of Mauryan dynasty in 321 BCE. The conflict between Chandragupta Maurya and the Nandas are described in the Purans Mindilapana and Mudra Rakshas. धनानंद जो थे वो एक पावरफुल राजा थे और उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, इसलिए उनको हराना आसान नहीं था।
पर चाणक्य की गाइडेंस से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी एक आर्मी बनाई और उसने सबसे पहले तक्षशिला को जीता और उसके बाद छोटे छोटे राज्यों को नॉर्थ वेस्ट में अपनी तरफ मिलाया। फाइनली उसने जो है एक बड़ी आर्मी इकट्ठी करके धनानंद पर अटैक कर दिया और इस प्रकार जो है वो मयूरन वंश के सबसे पहले राजा बन गए 321 में। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और नंद की जो है जो ये बीच में लड़ाई हुई, तो इनके बारे में जो डिस्क्राइब है वो पुराण और मुद्रा राक्षस में भी इसका वर्णन किया गया है। हिस्ट्री जो है इसके बारे में, देयर इज ए स्टोरी दैट टेल अस हाउ चंद्रगुप्त मौर्य मैनेज टू डिफीट धनानंद। वन डे चंद्रगुप्त मौर्य हर्ड ए वोमन टेलिंग हर चाइल्ड टू सी हिज रोटी फ्रॉम द एजेस first because the center was hotter and he could burn his mouth. Chandragupta Maurya, inspired by his instinct, attacked the outstreak of the Nand Empire first before working his way to the heart of the empire. He weakened the Nand forces before he attacked Patliputra, the capital of Magad, and won. इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने धनानंद को कैसे हराया। एक बार चंद्रगुप्त ने एक महिला को सुना कि वो अपने बच्चे को बता रही थी कि जो रोटी है उसको कोने से खाओ क्योंकि बीच में बहुत गर्म होती है, इससे तुम्हारा मुंह जल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस वाक्य से, इस घटना से बहुत इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए और उन्होंने जो है इससे ये शिक्षा ली कि मुझे पहले धनानंद के आउस्ट्रिक यानी बाहर के जो राज्य हैं छोटे छोटे उनको जीतना पड़ेगा, फिर जो है बड़े राज्य पर मैं बाद में आक्रमण करूंगा। ऐसी नीतियों को अपनाकर उन्होंने सबसे पहले जो है नंद की फोर्स को वीक बना दिया, कमजोर बना दिया और उसके बाद जो है पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी उस पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। Chandragupta and Chanakya together laid the foundation of a strong empire. They raised a sizable army and made many conquests. His empire stretched from Bengal and Assam in the east to Afghanistan and Balochistan in the west, to Kashmir and Nepal in the north and to the Deccan Plateau in the south. चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जो है दोनों ने मिलकर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई और बहुत सी विजय प्राप्त की। उन्होंने जो अपना राज्य था वो बंगाल और असम, पूर्व में बंगाल और असम तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से बलोचिस्तान तक और नॉर्थ में कश्मीर से नेपाल तक और साउथ में डेक्कन प्लेट्यू तक विस्तार किया। सेल्यूकस फर्स्ट डिक्टेटर, he was the Macedonian general under Alexander. He planned to take over Takshila from Chandragupta. After becoming the Magad king, Chandragupta fought with Seleucus first and defeated him, thus established his supremacy in the region. Subsequently, Chandragupta and Seleucus first signed a treaty in 305 BCE. According to this treaty, Seleucus first gave the Punjab, Kabul, Kandahar and Persia to Chandragupta. Chandragupta also married Seleucus' daughter. In return, Chandragupta gave the Greek general 500 elephants as a royal gift. जो सेल्यूकस फर्स्ट थे वो मैकेडोनिया के जनरल थे अलेक्जेंडर के अंडर में। उन्होंने जो है तक्षशिला को जीतने के लिए चंद्रगुप्त को प्लान किया कि हमें चंद्रगुप्त से तक्षशिला को जीतना है। उसके जब वो मगध के राजा बने तो उन्होंने जो है उनसे चंद्रगुप्त और सेल्यूकस फर्स्ट की लड़ाई हुई जिसमें कि चंद्रगुप्त जो हैं हार गए, लेकिन उनकी सुप्रीमेसी थी उनके राज्य में, तो उसे देखकर बाद में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस फर्स्ट में एक संधि हुई 305 में, जिसमें कि इस संधि में सेल्यूकस फर्स्ट ने उन्हें पंजाब, काबुल, कंधार और पर्सिया जो राज्य है वो वापस दे दिया। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस फर्स्ट की डॉटर से मैरिज कर ली और उन्हें रिटर्न में एक रॉयल गिफ्ट दिया। 500 एलिफेंट जो है वो ग्रीक जनरल को गिफ्ट में दिए। चंद्रगुप्त रूल्ड
for about 24 years, after which he gave up the throne to his son Bindusar and became a Jain monk under the guidance of his guru Bhadrabahu Swami. He performed Salekhana and starved himself to death in 298 BCE at Shravan Belangola. A small temple marked the cave where he died. चंद्रगुप्त ने जो है 24 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उन्होंने अपना जो राज्य है वो अपने पुत्र बिंदुसार को दे दिया और जैन मॉन्क एक सन्यासी बन गए। अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी की गाइडेंस में उन्होंने जो है सलेखाना यानी कि मृत्यु के द्वार तक जाना ये अपनाया और इसमें जो है वो खुद भूखे रहते हैं और जब तक कि मृत्यु ना आ जाए। तो उनकी डेथ जो है 298 में हुई थी। उनके जहाँ पर उनकी डेथ हुई है वहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल बना हुआ है उस गुफा में। Literacy sources. The Greek ambassador Megasthenes lived in the court of Chandragupta for 14 years. He wrote a book called Indica based on his experience in India. He has given a detailed description of the Mayuran Empire. This book is a valuable source of information and tells us about life during the Mayuran rule. जो ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त के राज्य कोर्ट में 14 वर्ष तक रहे और उन्होंने अपनी बुक इंडिका में इसके बारे में लिखा है। उन्होंने डिटेल में लिखा है कि मयूरन अंपायर किस तरह का था। उनकी ये जो बुक है वो बहुत ही मूल्यवान सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जिससे हमें मयूरन रूल के बारे में उस समय के जीवन के बारे में पता चलता है। द अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य इज अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू द मयूर्स, पाटलिपुत्र और चंद्रगुप्त. It is the theoretical account of the duty of a king and the administration of a state. अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, मगर इसमें जो है मयूरन एम्पायर के बारे में, पाटलिपुत्र और चंद्रगुप्त के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन उसमें थ्योरेटिकल लिखा गया है कि एक राजा के क्या क्या कार्य होते हैं और स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है. Bindusar ascended the throne of Magad after his father. He ruled from 297 to 273 BCE. Chanakya was still one of the most important ministers. Bindusar defeated 16 states and extended his empire towards South India. He had diplomatic relation with Syria and Egypt. बिंदुसार जो था वो मगध में राजा बना अपने फादर के बाद. उनका जो राज उसने 297 से लेकर 273 BCE तक राज्य किया. चाणक्य उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर रहे. बिंदुसार ने 16 स्टेटों को हराया और अपना जो राज्य था उसका विस्तार साउथ इंडिया तक कर लिया. उनके जो है राजनयिक रिलेशन बहुत अच्छे थे सीरिया और इजिप्ट के साथ. बिंदुसार रूल फॉर 25 years. He died in 273 BCE. The reign of Bindusar has no special significance in the history of India. However, he was a very sharp, wise, intelligent, polite and brave man. He was especially interested in religion. He was a powerful and benevolent ruler. बिंदुसार जो हैं उन्होंने 25 ईयर तक राज्य किया. उनकी मृत्यु 270 BC में हुई थी. बिंदुसार के राज्य में कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस जो है हिस्ट्री में नहीं मिलता है. इसके अलावा वो जो थे बहुत ही शार्प, बहुत ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, पोलाइट और बहादुर व्यक्ति थे. उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था धर्म पे. वो बहुत ही शक्तिशाली और दयालु राजा थे. Sushima was the eldest son of Bindusar, but Ashoka was the most able son. Bindusar's death was followed by a 4-year war of succession. Bindusar wanted Sushima to succeed him. Ashok had the support of the father's minister, and after killing his brother, he ascended the throne of the Mayuran Empire.
सुसीमा जो थे वो बिंदुसार के बड़े बेटे थे, पर अशोका जो थे वो बहुत ज़्यादा योग्य उनके पुत्र थे। बिंदुसार की जो डेथ थी वो 4 साल उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई के बाद हुई है और के कारण हुई थी। और बिंदुसार जो थे वो सुसीमा को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, पर अशोक जो थे उनको उनके फादर के मिनिस्टरों का बहुत सपोर्ट था, जिससे उन्होंने अपने भाई को की मृत्यु करवाई और उसके बाद वो मयूरन अंपायर के राजा बने। Ashoka the Great. Ashoka is the Great was the third and the greatest emperor of the Mayuran dynasty. He was born in 304 BCE. He was regarded as one of the most extreme exemplary ruler of the world. Ashoka means without sorrow. We know a lot of him about from the rock edict he put up all over his empire. He converted the Buddhism and propagate it. अशोक जो थे वो थर्ड इस वंश के तीसरे और बहुत ही ग्रेट अंपायर राजा रहे हैं। उनका जन्म जो था 304 BCE में हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये जब भी राजाओं की बात होती है तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल सम्राट अशोक के दिए जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अशोक का जो मीन्स है वो होता है विदाउट सोरो, यानी बिना दुख के। और इन्होंने अपने बारे में जो है हम जो इनके बारे में पढ़ सकते हैं वो इनके शिलालेखों में जो इन्होंने अपने एम्पायर में लगवाए थे उन में हम पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो है बुद्धिज्म अपना लिया था और उसी का प्रचार भी किया था। अर्ली लाइफ। अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसारा एंड क्वीन सुभद्रांगी और धर्मा. He was the brave warrior and skilled in sword fighting. He once killed a lion with a wooden rod. Being a king's son, he received training in warfare as well as knowledge of the Vedas. His grandfather Chandragupta was extremely fond of him. When Chandragupta became a Jain monk, he threw his sword into a river. Ashoka retrieved it and kept it. Because his military skill, he was sent to suppress a revolt in Takshila, which settled without any warfare. His half-brother feared that he would be made the emperor and forced Bindusara to exile him. However, after 2 years, there was an upswing in Ujjain and he was summoned back from the exile and sent to Ujjain. He suppressed the revolt but was badly injured. जो अशोक थे वो राजा बिंदुसार और रानी सुभद्रांगी के पुत्र थे। वो बहुत ही बहादुर थे और तलवारबाजी जो थी उसमें बहुत कुशल थे। एक बार उन्होंने वुडन रॉड से एक लॉयन को मार दिया था। क्योंकि वो राजा के पुत्र थे इसलिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी सभी वॉरफेयर की, लड़ाई की, युद्ध कला की और वेदों का भी उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। उनके जो ग्रैंडफादर दादा जो थे चंद्रगुप्त, वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। चंद्रगुप्त जब जैन मॉन्क बन गए सन्यासी तो उन्होंने अपनी जो तलवार थी वो नदी में फेंक दी थी, पर अशोका ने उसको पुनः प्राप्त किया और उसे अपने पास रख लिया। उसके मिलिट्री स्किल से उन्होंने जो है तक्षशिला की क्रांति को दबा दिया और बिना किसी युद्ध के उसे सेटल कर लिया। उनके जो ब्रदर थे वो इस बात से बहुत डर गए थे कि ये राजा बन गए हैं, तो उन्होंने बिंदुसार को देश से बाहर भेज दिया। लेकिन 2 साल के बाद जब विद्रोह हुआ उज्जैन में तो उन्हें वापस बुला लिया गया और उज्जैन भेज दिया गया और इस तरह जो क्रांति थी उज्जैन की उसको दबा लिया गया। He received treatment from Buddhist monk. It was heard पर उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और he received treatment for Buddhist monk. It was here the Ashoka acquired knowledge about Buddha and his teaching. फिर उनको जो है बुद्धिज्म मॉन्क के पास वो पहुँचे और वहीं उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो तब उन्होंने जो है उन्हें बुद्ध के बारे में जानकारी मिली और उनकी
टीचिंग, उनकी शिक्षाओं के बारे में भी उन्हें वहीं पर ज्ञान मिला। कलिंगा वॉर, आफ्टर बिंदुसारा डेथ अशोका बिकम द एम्परर फॉर 8 years he led the empire. He extended the empire and made it strong. He fought many wars, but Kalinga, a kingdom in the east, was independent. He waged a war on Kalinga, and this war was the turning point of his life. The war was devastating, and Kalinga was destroyed completely. Ashoka himself was horrified when he witnessed the horrendous bloodshed. बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो हैं वो राजा सम्राट बन गए और उन्होंने जो है 8 वर्षों तक अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद उन्होंने अपने और अधिक राज्य का विस्तार करने के लिए और शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सी युद्ध लड़े, पर कलिंगा का जो एक राज्य था ईस्ट में वो स्वतंत्र था, तो उन्होंने वहां पर युद्ध स्टार्ट किया। और ये जो युद्ध था कलिंग का युद्ध, ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। ये इतना भयानक विनाशकारी युद्ध हुआ कि जिसमें कलिंग जो था वो पूरी तरह नष्ट हो गया राज्य। अशोका जो थे वो खुद ये देखकर, वो उन्होंने खुद इस युद्ध को, विनाशकारी युद्ध को देखा था, तो वो इतना लहू देखकर या इतना रक्तपात देखकर वो बहुत भयभीत हो गए। After having realized the consequences of war, Ashoka gave up the warfare and his policy of conquest. He embraced Buddhism under the sages Radha Swami and Manjushri. He showed that he would rule the conquer by dharma, the Parprit word for dharma. ये जब उन्हें ये एहसास हुआ कि जो युद्ध के परिणाम का एहसास हुआ कि इसमें कितने निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लहू को देखकर वो भयभीत हो गए, तो उन्होंने जो है युद्ध करने का, जीवन में कभी भी युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया कि अब युद्ध करना छोड़ दिया कि मैं अब कभी भी जीवन में युद्ध नहीं करूँगा, और विजय प्राप्त करने की अपनी जो पॉलिसी है उसे भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, साधु राधा स्वामी और मंजूश्री के अंडर में। उन्होंने ये कसम खाई कि उन्होंने मैं अपना जो राज्य है उसको अब धर्म के द्वारा चलाऊंगा, जो कि एक प्राकृत वर्ड धर्मा का ही ट्रांसलेट है। अशोका एंड बुद्धिज्म। Ashoka became an ardent follower of Buddha's teaching. He undertook pilgrimages to all the places connected with Buddha's life. He redistributed the relics of Buddha and preserved them in every important town. He built many stupas and vihar. He was closely associated with the Sangha and Buddhist monks. He organized a great Buddhist conference at Patliputra to settle the difference that he arisen in the Sangha. अशोक जो है वो एक उत्साही फॉलोअर बने बुद्धिज्म की शिक्षाओं के द्वारा। उन्होंने जो है बहुत से धार्मिक स्थलों से कनेक्ट रहे, भगवान बुद्ध के जीवन से जो जुड़े हुए थे। उन्होंने जो है बहुत सी रैलियां की और बुद्ध के जो इम्पॉर्टेंट टाउन थे उन्हें प्रिजर्व किया। उन्होंने बहुत से स्तूप और विहार बनाए और वो संघ से जो है क्लोजली, बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे। और बुद्धिज्म साधु, बुद्धिस्ट मॉन्कों से भी उन्होंने जो है एक कॉन्फ्रेंस भी रखी बुद्धिस्ट पाटलिपुत्र में, जिससे कि जो डिफरेंस से उनके बीच में संघ और व्यक्तियों के वो डिफरेंस मिट सकें। Ashoka propagated Buddhism. He sent Buddhism missionary to other countries. He sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread Buddhism. At the same time, he was tolerant of all religion and did not force people to convert to Buddhism. Emperor Ashoka made the first serious attempt to develop a बुद्धिज्म पॉलिसी। अशोक ने जो है बुद्धिज्म का विस्तार को प्रसारित किया। उन्होंने बहुत सी मिशनरी को अदर कंट्रीज में भेजा बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री को भी श्रीलंका में बुद्धिज्म का प्रसार करने के लिए भेजा। और इस समय जो थे वो सभी जो धर्म है उनके प्रति सहनशील बने रहे। उन्होंने किसी भी
व्यक्ति को फोर्स नहीं किया कि वो बुद्धिज्म को अपनाए। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने पहली सीरियस जो अटेम्प्ट किया कि बुद्धिज्म पॉलिसी को उन्होंने डेवलप किया बहुत ज़्यादा। अशोक धमा, मोस्ट ऑफ अशोक एडिक्ट are about Dhamma. It was the code or conduct and a way of life. He was totally involved in propagating Dhamma. The Buddhist teaching had a profound effect on Ashoka, and he used all his power and resource to spread these teaching. He wanted to rule his empire by Dhamma. He told his official to be kind and tolerant toward the people. He appointed a special official called Dhamma Mahamantra to see the welfare of the people. He himself went on tours to find out the problem of the people and help them out. He was always available for the people in time of need. जो अधिकतर शिलालेख हैं अशोक के, वो हमें धम्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। ये एक कोड है जो कि व्यवहार और जीवन के बारे में बताता है। ये टोटली जो थे वो इन्वॉल्व रहते थे धम्मा को प्रसारित करने में। बुद्धिज्म की टीचिंग से इनका गहरा इफेक्ट था इनके ऊपर, और इन्होंने अपनी जो पूरी पावर थी और जो भी रिसोर्सेज थे वो बुद्धिज्म की टीचिंग को ही फैलाने में लगा लिए। वे चाहते थे कि वो अपने शासन को धम्मा के ही द्वारा चलाएं। उन्होंने अपने ऑफिशियल उनको भी बोल दिया था, ऑफिसर को, कि वो दयालु रहें और सहनशील रहें लोगों के प्रति। उन्होंने कुछ ऐसे स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर रखे थे जिन्हें धम्मा महामंत्र कहा गया, और वो लोगों के वेलफेयर को ही देखते थे। वो कभी कभी खुद भी लोगों की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए उनके बीच में चले जाते थे और उनकी हेल्प करते थे, और जब भी किसी को उनकी ज़रूरत होती थी तो वो टाइम पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अहिंसा इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अशोका धम्मा. ही वॉज अगेंस्ट द अननेसेसरी मार्सेस एंड multation of people. Hence the people become protected by the king's law. Hunting was discouraged. Ashoka also promoted the idea of vegetarianism. He allowed the prisoner to be set free. He treated all people as equal and did not believe in the caste system. He planted trees and dug wells and even built university. Hospitals were built for both human and animal. He advocated the people to respect their parents and Brahmin. They were to prize each other religion because that would show greatness of their own religion. He discouraged unnecessary ceremonies and asked the people to show regard for the slave also. Ashok now came to known as the Dharma Ashoka and pious king. जो इम्पॉर्टेंट फीचर था अशोका धम्मा का वो था अहिंसा। वो जो थे अननेसेसरी नरसंहार और विकृति जो लोगों की हो जाती है उसके बहुत खिलाफ थे। उन्होंने जो है ऐसे लॉ बनाए जिससे कि हंटिंग को डिस्करेज किया गया, यानी हंटिंग शिकार को के लिए करना सही नहीं है, इसके बारे में बताया कि इससे जानवरों की रक्षा होगी। एनिमल ने अशोका ये चाहते थे, उन्होंने प्रमोट भी किया कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए। उन्होंने जो है बंदियों को भी आज़ाद करवा दिया और सभी व्यक्तियों को इसी एक समान ही ट्रीट करते थे। वो कास्ट सिस्टम पर बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने बहुत से पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और बहुत सी यूनिवर्सिटियां भी बनाई, हॉस्पिटल बनाए लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। उन्होंने लोगों को ये बताया कि हमें पेरेंट्स और ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे धर्मों की महानता को दर्शाता है। उन्होंने डिस्करेज किया अननेसेसरी समारोह को और लोगों को ये बताया कि किसी को भी हमें इस तरह शो नहीं करना चाहिए कि कोई हमारा गुलाम है। इन सब नीतियों के कारण ही अशोक जो थे वो धर्म अशोक कहलाए या पवित्र अशोक। Rock edit शिलालेख। Apart from following the principle of Buddhism, Ashoka vowed to spread them. He had inscription carved on the rock in numerous palaces at all his empire.
These are a valuable source of knowledge about the Mauryan Empire. The Ashokan rock edicts are a collection of 33 inscriptions that are carved on the pillar of Ashoka and on big Blauder caves, etc. They have Ashoka idol and philosophy written on them. Ashoka urged people to follow this example. The rock edicts of Ashoka are spread all through the northern part of India as well as modern day Pakistan. The rock edicts emphasize Emperor Ashoka belief in the concept of dharma and focus on religion, social and moral concept. जो शिलालेख हैं अशोक के, वो जो है उनके जो प्रिंसिपल हैं वो बुद्धिज्म पर आधारित हैं, जिन्हें उन्होंने पूरे देशों में फैलाया। उनके जो इंस्क्रिप्शन है वो पत्थरों पर खुदे हुए हैं जो कि उनके पूरे राज्य में फैले हुए थे। इससे हमें मायूरियन एम्पायर के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स मिलते हैं, उस समय की जानकारी मिलती हैं। अशोका रॉक एडिक्ट जो है वो 33 है वो कलेक्शन में, और ये पिलर के रूप में उन पर खुदाई हुई है, कहीं बड़े पत्थरों पर है, केव्स यानी गुफाओं में भी हैं, जिससे हमें अशोका के आइडल्स और उनकी फिलॉसफी के बारे में उनमें लिखा गया है। अशोक ने आग्रह किया कि लोगों को भी यही मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने बुद्धिज्म को जो है नॉर्थ इंडिया पार्ट में, मॉडर्न डे में जो पाकिस्तान में है, वहां पर भी फैलाया। रॉक एडिक्ट्स जो है वो सम्राट अशोक की धर्म के विश्वास को दर्शाता है और कि उन्हें धर्म पे, सोशल और मॉरल कॉन्सेप्ट को फोकस किया था आपने। The major rock edict at Girnar of Ashok, first rock edict, and can be translated as follow: beloved of the god King Piyadasi has caused this Dhamma edict to be written here. No living beings are to be slaughtered or offered in sacrifice, nor should festival be held for beloved of the god King Piyadasi see much to object in this such festival. Although there are some festival are beloved of the god King Piyadasi does approved of. जो इनका फर्स्ट रॉक एडिक्ट है वो गिरनार में है, और उसमें यह ट्रांसलेट है कि जो भगवान का प्रिय राजा प्रियदासी जो है वो धम्मा एडिक्ट के बारे में उसमें लिखा है कि हमें कभी भी जो है लिविंग बींग्स का वध नहीं करना चाहिए और ना ही सैक्रिफाइस को ऑफर करना चाहिए। कोई भी फेस्टिवल में किसी भी पशुओं को, जानवरों को मारना नहीं चाहिए, और इस तरह के जो फेस्टिवल हैं उनको हमें नहीं मनाना चाहिए। Formerly in the kitchen of beloved of the gods King Piyadasi, hundreds of thousands of animals were killed every day to make curry. But now with the writing of this Dhamma edict, only 3 creatures, 2 peacock and a deer are killed, and the deer not always, and in time not even these 3 creatures will be killed. फॉर्मली जो था, सामान्यतः जो है राजा पियदासी के किचन में जो है बहुत से जानवरों को रोज मारा जाता था करीब के लिए, लेकिन धम्मा लिखने के बाद, धम्मा एडिक्ट के बाद जो है उनके किचन में केवल 3 क्रिएचर को ही मारा जाता था, 2 पीकॉक और 1 डियर, और डियर को भी हमेशा नहीं मारा जाता था। उस समय केवल इन्हीं 3 क्रिएचरों की, जीवों की हत्या की जाती थी। द एडिक्ट शो सीरियस कंसर्न फॉर नॉन वायलेंस। इस एडिक्ट से ये शो करता है कि जो अशोक थे वो कितने सीरियस, कितने चिंतित थे अहिंसा के प्रति। ओके स्टूडेंट, इसका जो बाकी बचा लेसन का पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड किया जाएगा। गुड बाय।